Yeah, good morning, everybody. We are continuing with basic principles and techniques of organic chemistry. We are now going to do IUPAC nomenclatures of aliphatic long chain compounds. Okay, so IUPAC nomenclature of aliphatic long chain compounds. Now rules. These are the basic rules which you have to learn. You all will take screenshot of these rules and write down all the rules. Okay, examples you need not copy, only the rules you have to write down. Now first one is longest chain. Select the longest chain of carbon atom. This is called the parent chain. And carbon atom which are not included in the parent chains are called as what? Branch chain or a substituents. Okay. Now see. Okay. Now see, this is the longest chain. This is the longest chain and it is called parent chain. And these methyl groups are called substituents. Okay. So this is the parent chain and these are the substituent. Now every slide you all take down the screenshot and copy it. Okay. You need not copy the example, only the rules you all copy, that is enough. So you took a screenshot. Okay. Now see the next one. Now see the longest chain. Now which is how many carbon atom longest chain is here? Tell me. कितने कार्बन की longest chain है तुमको दिख रही है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7. Okay. हाँ श्रेयांश 9, Ronit 9. Okay, and Farhan 7. 9. Correct. हाँ, correct answer is 9. Okay. देखो longest chain का मतलब ये नहीं होता कि सीधा होना चाहिए. Longest chain can be any chain without lifting your hand you go, है ना? सी ये करोगे तो खाली 7 कार्बन की आएगी. ओके, पर ये देखो लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ये होता है ऐसे ऐसे जाना है. विदाउट लिफ्टिंग योर हैंड तुम जाते रहो जितना लंबा जा सको, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट होना चाहिए. ठीक है ना? ओके, so now this is 9 carbon atom longest chain, है ना? So it contains 9 carbon atoms. So this is wrong, this is right. Is it clear? So it may not be, it may be noted that the longest chain may not be straight. जरूरी नहीं है straight होना है. ऐसे horizontal, vertical कैसे भी हो सकता है. ऐसे zigzag भी जा सकता है, नीचे 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 नीचे. ठीक है ना? पर continue without lifting your hand, जितना लंबा जा सको उसको बोलते हैं longest chain. समझ आया? Okay, take a screenshot of this. Okay, now next one. The lowest number rule. Now see, the number of carbon atom of the parent chain is 1 2 3 4 etc. starting from the end, which gives the lowest possible number. अभी देखो यहाँ पे ना, अगर हमने नंबरिंग लेफ्ट से किया, ओके, नंबरिंग लेफ्ट से किया तो 2 आएगा. हाँ, लोक एंड रूल या. और यहां से करोगे तो 4 आएगा. सो नाउ विच इज करेक्ट, द फर्स्ट वन और सेकेंड वन? या श्रेयांश करेक्ट? First one. First one. Yeah, first one is correct and second one is incorrect. Okay. Yeah, it contains 5 carbon. Both of them contain 5 carbon. This is wrong. जहां से closest होगा वहां से numbering दो. Okay. No. ये समझा? चलो, take a rule number 2 का screenshot.
Okay, chalo next one. Now see, अभी इसमें ये इस दोनों में लॉन्गेस्ट चेन देखो कितने कार्बन की है 1 2 3 4 5 6 ओके एंड यहाँ पे भी 6 1 1 2 3 4 5 6 okay but here we can see there are two branches and here there is only one branch so which one you will select the first one or second one yeah Shreyansh correct इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट है और इसमें सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है बड़ा वाला और इसमें दो छोटे छोटे सब्स्टिट्यूएंट है तो कौन सा सिलेक्ट करोगे हाँ रोनित इनकरेक्ट रेस्ट ऑल आर करेक्ट हाँ मैक्सिमम ब्रांचेस होनी चाहिए वैसा सिलेक्ट करो ओके या मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस with two alkyl group here there is only one alkyl group so select the parent chain with more number of branches okay if the chain of equal length are possible select the one with large number of side chains or substituent तो जिसमें ज्यादा substituent है वो longest chain select करो okay चलो take a screenshot of this okay next one rule number 4 if the same substituents or the side chains occur then we put prefix di for 2 methyl group di 3 methyl group tri likewise if there are 2 ethyl group di 3 ethyl group tri tetra and same way we can go for 4 5 numbers are attached to the name of the substituent okay now see here the longest chain is of 4 carbon and there are 2 methyl group so we write 2 3 dimethyl butane yeah Shreyansh 2 3 2,3 हाँ now see here same way if there are 2 ethyl as a substituent okay we write see in the numbering now if you go from left side the numbering is 3 3 if you go from right side the numbering is 4 4 okay now here you add some you see 3 plus 3 is 6 and 4 plus 4 is 8 which is smaller 6 is smaller so that one is correct 6 is smaller and that one is correct is it clear so least sum rule follow karna hai na so it will be 3 3 diethyl hexane that is correct chalo take a screenshot of rule number 4 if the same substituents are present then di tri tetra penta we have to give okay okay next one see now this यहां से जाओगे यहां से अगर लेफ्ट से नंबरिंग किया तो सम हो जाएगा 2,5,5 देयर आर 3 मिथाइल ग्रुप सो इसका टोटल आएगा 2,5,5 अगर मैंने राइट से नंबरिंग दिया तो इसका टोटल हो जाएगा 2,2,5 सो विच इज स्मॉलर राइट से करोगे कि लेफ्ट से करोगे नंबरिंग विच इज करेक्ट हाँ 2 2 5 is correct everybody got it ओके हाँ फरहान समझ आ रहा है मोहम्मद समझ आ रहा है ना तुबा हाँ नेथन यू आर गेटिंग इट ना वेरी गुड चलो 2 2 5 is correct because 2,2,5 is 9 and 2 5 5 will be 12 okay so 9 is smaller so we'll go according to this number this is correct is it clear this is just a example okay yeah chalo next one rule 5 if two different substituents are located at equivalent position in the main chain the numbering is done in such a way that alphabetical order will follow the alphabetical order which is the lowest will be first one
ओके लाइक देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल और इथाइल। अगर हम लेफ्ट से जाएंगे तो मिथाइल को लीस्ट नंबरिंग आएगी और राइट से जाएंगे तो इथाइल को लीस्ट नंबरिंग आएगी। ओके सो विच इज करेक्ट, फर्स्ट वन और सेकेंड वन? या श्रेयांश करेक्ट, या तुबा करेक्ट, हाँ रोनित करेक्ट, या प्रियांशी, हाँ यू आर फॉलोइंग ओके। मोहम्मद, हाँ मोहम्मद, मोहम्मद ये दोनों में से कौन सा नंबरिंग सही है, फर्स्ट वन और सेकेंड वन? हाँ दक्षित करेक्ट, फरहान करेक्ट, हाँ हाँ 3 ethyl 1 is correct. Okay, so this is wrong and this is right. Okay, chalo take a screenshot of this. Rule number 5. Okay, चलो नेक्स्ट वन। हाँ अभी देखो यहाँ पे ना हम 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन से नंबर ऑफ आइसोमर्स लिखते जाएंगे और कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है विल ड्रॉ एंड गिव IUPAC नेम, molecular formula, empirical formula. Now what is molecular formula? It gives you exact number of atoms of each element. तो ये मॉलिक्यूल ब्यूटेन में है, there are 4 carbon and 10 hydrogen. Now what will be the least ratio of this? Empirical formula is the least ratio. So what is least ratio of carbon and hydrogen here? या रोनित करेक्ट, या प्रियांशी करेक्ट, हाँ फरहान करेक्ट, मोहम्मद, तुबा, ऋषिक, इन दोनों का लीस्ट रेशियो क्या हो जाएगा? 4:10। हाँ 4:10 का लीस्ट रेशियो बताना है, 4 और 10 का। तो लीस्ट रेशियो करोगे तो 2:5। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? लीस्ट रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, तो ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये ब्यूटेन का इंपेरिकल फॉर्मूला है। इज इट क्लियर? ओके नाउ सी हियर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में पहले ना ब्यूटेन 4 कार्बन है तो सीधी एक लाइन बना दो, तो 4 कार्बन ही एक लाइन बनेगी। अभी क्या करो, 3 कार्बन लाइन में रखो और एक को ब्रांच करो। यू हैव टू मेक चेन्स ऑफ फर्स्ट ओनली कार्बन एंड देन पुट हाइड्रोजन। हर कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो जितने बॉन्ड कम है उतने हाइड्रोजन डालते जाओ। सो फ्रॉम 4 कार्बन वी कैन मेक 2 चेन्स, एक स्ट्रेट और एक ब्रांच। ठीक है, अब ये स्ट्रेट चेन का नाम है, इसका नाम है ब्यूटेन। व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इसका नाम बताओ, IUPAC नेम। हाँ रोनित IUPAC नेम। नहीं नहीं श्रेयांश, अल्केन है वो, अल्काइल ग्रुप नहीं है। हाँ रोनित करेक्ट, या करेक्ट। 3 कार्बन की लंबी चेन है, 1 2 एंड 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2-methyl प्रोपेन। प्रोपेन, हाँ नॉट ब्यूटेन, 2-methyl प्रोपेन। ओके 2-methyl प्रोपेन इसका नाम है। ओके ना सी, अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे कंडेंस फॉर्मूला। अब ये कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है? ये CH2 2 बार है तो इनको साथ में लिख देना है। जो सिमिलर ग्रुप है उनको साथ में लिख सकते हो। ये मिथाइल और ये मिथाइल नहीं लिख सकते बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच। तो जो डायरेक्टली अटैच ग्रुप है उनको हम साथ में लिख सकते हैं। तो इसका कंडेंस फॉर्मूला हो जाएगा CH3, ये CH2 2 बार और फिर ये CH3। अभी देखो यहाँ पर है ना 3 CH3 ग्रुप है, the all 3 CH3 groups are attached to CH, so I can condense it like this: CH3 3 times and CH,
जब भी CH3 ब्रैकेट में होगा ना, इसका मतलब दे आर ब्रांच्ड, और जब भी CH2 ब्रैकेट में है मतलब दे आर इन वन लाइन। सुनो फिर से, CH2 जब भी ब्रैकेट में होगा इसका मतलब वो लाइन में है ऐसे, और CH3 जब भी ब्रैकेट में है मतलब वो ब्रांचिंग में है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। अभी हम और एक फॉर्मूला लिखेंगे, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है, ये 4 कार्बन है मीथेन के, हम सिंपली उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4। अगर एग्जाम में ये स्ट्रक्चर दे दिया है तो तुमको इसका आईपीसी नेम पूछा तो बोलना इट इज ब्यूटेन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है और एक मिथाइल बाहर है, तो हम ये 3 कार्बन की चेन ऐसे बनाते हैं और एक मिथाइल ऊपर या तो नीचे, ये मिडल वाले कार्बन पे ऊपर या तो नीचे, तो ये इंडिकेट करता है एक मिथाइल ग्रुप, और ये 3 कार्बन की लंबी चेन है। ठीक है, चलो ये कॉपी करो, फिर हम ऐसे ही जैसे ब्यूटेन के लिए किया ऐसे हम पेंटेन के लिए करेंगे सारे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, कंडेंस फॉर्मूला और फिर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। चलो जल्दी कॉपी करो। चलो हुआ। इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है मोहम्मद लीस्ट रेशियो। कोई भी मॉलिक्यूल में जितने एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी एलिमेंट्स होंगे ना, उनका लोएस्ट रेशियो। मतलब अभी देखो यहाँ पे 4:10 है, तो इसको लोएस्ट फॉर्म में लेकर आओ, 2 2 एंड 2 5 तो 2 5। अभी मोहम्मद ये बताओ, मीथेन है ना, मीथेन, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीथेन का इंपेरिकल फॉर्मूला है CH4, तो उसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या लिखोगे? हाँ, उसमें 1:4 ही आएगा, मतलब उसका इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम। या 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, आई कैन नॉट रिड्यूस फर्दर। तो ऐसा नहीं है हर बार इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हो, इट विल बी सेम ऑल्सो। ठीक है, समझा? चलो ये कॉपी हुआ सबका। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, नेम, कंडेंस फॉर्मूला और फिर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अभी हम पेंटेन का करेंगे, जिसका हो गया पेंटेन से शुरू करो। C5H12, C5H12, और कितने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल है ट्राई करो। या देखो अभी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका C5H12 है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाँ सेम रहेगा फरहान, वेरी गुड। हाँ इट विल बी सेम, क्योंकि अभी इसका लोएस्ट रेशियो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला। अभी कितने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हो? पहले कार्बन की चेन बना बना के लिखो। पहले स्ट्रेट चेन करो 5 कार्बन की, फिर एक ब्रांच में लो, फिर उसको सेकेंड या थर्ड कार्बन पे देखो अरेंज कर सकते हो कि नहीं, फिर दो 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 मिथाइल ब्रांच में लेके देखो। ट्राई दैट वे, कम ऑन, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, टेल मी। या करेक्ट फरहान, वेरी गुड। या प्रियांशी करेक्ट, रोनित करेक्ट। पहले हम कार्बन की लंबी चेन बनाएंगे 5 कार्बन की। ठीक है, तो ये हो गया हाँ पेंटेन। ठीक है, अब यहाँ पे एक को ब्रांच ले लेंगे। व्हाट विल बी द आईयूपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड? हाँ वेरी गुड फरहान,
हाँ, लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 4 कार्बन और इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। या अभी देखो ये तीसरा स्ट्रक्चर, अभी लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 3 कार्बन एंड देर आर 2 मिथाइल इन अ ब्रांच। या प्रियांशी करेक्ट? या फरहान वेरी गुड। या श्रेयांश वेरी गुड। तुबा नंबरिंग दो। मोहम्मद करेक्ट। हाँ ऋषिक करेक्ट। हाँ नंबरिंग देनी है तुबा। हाँ 2,2 दो बार, क्योंकि मैंने बोला दोनों मिथाइल सेकेंड कार्बन पे है, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, चलो अभी तुम लोग कंडेंस फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो सबके, 1 2 तीनों स्ट्रक्चर के कंडेंस फॉर्मूला लिखो, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। हाँ नेथन वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, चलो देखो सबको समझ आ रहा है। ये 3 CH2 साथ में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CH3 CH2 3 टाइम्स और फिर CH3। अभी देखो सेकेंड वाले में ध्यान दो, खाली ये दोनों मिथाइल ग्रुप है ना, सिमिलर है, और ये सब अलग अलग ग्रुप है, सो आई कैन नॉट कंडेंस देम। ठीक है ना, तो खाली ये दोनों CH3 को मैं साथ में लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3। हाँ ये CH3 को साथ में ले सकता हूँ श्रेयांश, सो इट विल बिकम 2 टाइम्स CH3 ग्रुप, फिर ये CH, फिर CH2, फिर CH3। इज इट क्लियर? श्रेयांश समझा? हाँ अभी इसमें वेरी गुड, ये फरहान वेरी नाइस। हाँ लास्ट वाले में क्या कर सकते हो, 4 मिथाइल ग्रुप है, हाँ और एक कार्बन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑल 4 मिथाइल ग्रुप टुगेदर एंड 1 कार्बन। अभी एग्जाम में देखो ये स्ट्रक्चर देंगे और बोलेंगे राइट आईयूपीसी नेम, तो पहले ये कंडेंस स्ट्रक्चर दिया है तो उसको ऐसे एक्सपांड करना पड़ेगा और फिर उसका आईयूपीसी नेम लिखना है। और फिर से सुन लो, मिथाइल ब्रैकेट में है उसका मतलब वो ब्रांच्ड है, और CH2 ब्रैकेट में है तो वो एक लाइन में है, so that you remember when CH2 is in bracket means it is in one line, when CH3 is in bracket means it is always branched। चाहिए तो लिख लो, CH2 in bracket means they are in straight line, and when methyl CH3 is in bracket means they are always branched। ओके okay? चलो अभी इसका बॉन्ड लाइन बनाना है, बॉन्ड लाइन बनाओ, इसका बॉन्ड लाइन बनाओ सबके चारों के। हाँ श्रेयांश वेरी गुड। फरहान, हाँ श्रेयांश उसमें और एक कार्बन ऐड करो। फरहान वेरी गुड, फरहान का करेक्ट है। श्रेयांश तुमने 4 कार्बन बनाए। हाँ अभी बराबर है, एम हो जाएगा, एम है ना, एम ऐसे 1, ये एक डॉट समझो एक कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 कार्बन की चेन है और एक मिथाइल बाहर है, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 और एक मिथाइल बाहर। एग्जाम में ये स्ट्रक्चर देंगे और नाम पूछेंगे, तो तुम चाहिए तो डायरेक्टली ये समझ आ रहा है तो डायरेक्टली ऐसे लिखो, वरना एक एक पॉइंट को कार्बन 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 करके फिर ये स्ट्रक्चर लिखो और फिर नाम लिखो। यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट फ्रॉम बॉन्ड लाइन टू स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जहां पे भी ये जॉइंस है डॉट, वहां पे कार्बन 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 लगा देना है, और हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो इससे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लो और फिर नाम लिखो। ठीक है, अभी देखो लास्ट वाला, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है
और दो ब्रांच है, एक ऊपर एक नीचे, दोनों ब्रांच ऊपर भी बता सकते हो, दोनों ब्रांच नीचे भी बता सकते हो, यू कैन ड्रॉ एनी वे। हाँ, प्लस प्लस लिख दिया तो भी चलेगा। वेरी गुड। हाँ, substituent is not methyl, then I'll tell you Farhan will do that also, don't worry. ओके अगर सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल नहीं है, इथाइल है या तो और कोई है, तो कैसे लिखना है, विल टॉक अबाउट ऑल दैट ऑल्सो, है ना। ओके चलो ये कंप्लीट हुआ। हाँ, जिसका हुआ आगे हेक्सेन लिखो, C6H14 हेक्सेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, फिर कितने स्ट्रक्चर्स है। या करेक्ट। हाँ चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14, अब इसका लीस्ट रेशियो करना है। आ रहे हो, देखो कुछ समझ आ रहा है। देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, फिर इसका ये इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ कितने एटम है। श्रेयांश स्ट्रक्चर 5 आएंगे और करो। इंपेरिकल फॉर्मूला में लीस्ट रेशियो मतलब 6:14 का छोटा रेशियो हो जाएगा 3:7, तो लीस्ट रेशियो को बुलाते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके अभी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अभी 6 कार्बन से कितने स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। पहले खाली कार्बन की चेन लिखो, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। मेक ओनली चेन ऑफ कार्बन एटम्स। So butane has 2 isomer, pentane has 3 isomers. Okay, अभी देखो हेक्सेन में कितने आइसोमर्स है, मैंने बोला तुम लोगों को 5 स्ट्रक्चर बनने चाहिए। पहले तो 6 कार्बन की लंबी चेन ले लो, फिर एक मिथाइल ब्रांच में रखो, अभी वही मिथाइल को दूसरे कार्बन पे शिफ्ट करके देखो, फिर 2 मिथाइल ब्रांच में लो। देखो अभी सारे स्ट्रक्चर्स बताता हो, जिसको जिसको समझा वो। पहले तो 6 कार्बन की एक लंबी चेन हो गई, फिर 4 की चेन हुई और एक ब्रांच हुआ, ठीक है ना। अब यही ब्रांच सेकेंड कार्बन पे ना, ये ब्रांच को मैं थर्ड कार्बन पे भी शिफ्ट कर सकता हूं, तो थर्ड पे शिफ्ट किया, तो ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हो जाएंगे, ठीक है। अभी एक मिथाइल की जगह पे 2 मिथाइल ले सकता हूं, तो 2 मिथाइल बाजू बाजू में है और 2 मिथाइल एक ही कार्बन पे भी आ सकते हैं, तो पांचवा स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। तो पहले खाली कार्बन की चेन बना के 5 स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और फिर हाइड्रोजन फिल करते जाना है सब में। सो टोटल 1 2 3 4 एंड 5 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल। ओके अभी इनके पहले आईयूपीसी नेम लिख दो सबके। हाँ चैट में मत डालो, खाली तुम लोग लिखो, नहीं तो टाइम वेस्ट करोगे। सब लोग अपने अपने स्ट्रक्चर्स के नाम लिख दो, पांचों स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो, पांचों के नाम लिखो, फिर कंडेंस फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला।
ओके देखो अभी ये इसका नाम है हेक्सेन। अब यहाँ पे लंबी चेन है 5 कार्बन की और यहाँ पे मिथाइल। आर्य ध्यान दे बराबर से। सेकेंड कार्बन पे मिथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। अब यहाँ पे है ना नंबरिंग राइट से करो या लेफ्ट से करो इट विल बी सेम। methyl will be on third carbon only, so longest chain is of 5 carbon and methyl is on third carbon, तो ये हो जाएगा 3 methyl pentane। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो ये हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन पे है तो ये हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, सबके नाम बराबर आए। आर्य समझा देखो नाम। हाँ सर। हाँ ठीक है, अभी देखो कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है वो समझ आ रहा। कंडेंस फॉर्मूला में देखो ये मिथाइल है, फिर 1 2 3 4 बार CH2 है, तो ये चारों CH2 एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए हम उनको साथ में लिख सकते हैं ऐसे CH2 4 टाइम्स। पर ये मिथाइल दूर है तो उनको हम डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है तो हम उनको साथ में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखो ये वाले में कंडेंस फॉर्मूला देखो, 2 मिथाइल साथ में है, ये CH को अटैच्ड है, फिर ये 2 CH2 साथ में है, इनको हम साथ में लिख सकते हैं, ये CH3 अलग लिखेंगे। तो देखो इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसा हो गया, 2 मिथाइल फिर ये CH फिर ये 2 CH2 और फिर ये CH3। ठीक है, समझा आर्य? हाँ। हाँ अभी देखो इधर कोई भी चीज ऐसा कॉमन नहीं है। ओके तो हम कैसे लिखेंगे, ये CH3 CH2 एज इट इज रहेगा, ये CH एक। हाँ सी नाउ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर दिस एन हेक्सेन 1 2 3 4 5 6। नाउ हियर 2 मिथाइल पेंटेन, तो 5 कार्बन की चेन है 1 2 3 4 5 and there is one methyl group outside। हियर 5 कार्बन की चेन है और थर्ड कार्बन पे एक मिथाइल है, या तो ऊपर बनाओ या तो नीचे बनाओ। यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है 1 2 3 4, 2 मिथाइल है, दोनों ऊपर दोनों नीचे या तो एक ऊपर एक नीचे कहीं पे भी बनाओ पर चलेगा। ठीक है ना, गिव मी IUPAC नेम फॉर दिस। पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बन की है लॉन्गेस्ट चेन? हाँ तुबा इनकरेक्ट है। हाँ श्रेयांश, रोनित करेक्ट, मोहम्मद करेक्ट। हाँ तुबा 5 कार्बन। 2 हाँ प्रियांशी इनकरेक्ट। 2 इथाइल। हाँ दक्षित करेक्ट। देखो 2 इथाइल ब्यूटेन, प्रियांशी वो रॉन्ग है। हाँ लॉन्गेस्ट चेन विल गो लाइक दिस 1 2 3 4 और 5। मैंने बोला था बिना हाथ उठाए तुमको कंटिन्यू जाना है, जितना लंबा लंबा जा सको, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट ही होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो ये लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है, 5 कार्बन मतलब क्या हो जाता है पेंटेन। अभी देखो थर्ड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है 3 मिथाइल, so the name is 3 methyl pentane। चलो कॉपी डाउन, गिव IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग, ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड राइट डाउन द नेम। आर्य समझा देखो? हाँ सर। हाँ नहीं समझा तो पूछ। हाँ नेथन। यस सर। हाँ ओके, so write down the name 3 methyl pentane। चलो नेक्स्ट वन। अभी देखो इधर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, कितने कार्बन की है?
हाँ करेक्ट. ओके अभी इसका नाम दो. नंबरिंग राइट से करना है हाँ, क्योंकि मिथाइल यहां से क्लोजेस्ट है. या श्रेयांश करेक्ट. प्रियांशी करेक्ट. या ऋषिक मोहम्मद करेक्ट. हाँ तुबा करेक्ट. देखो अभी 6 कार्बन है तो इसका नाम हो जाता है हेक्सेन. दक्षित वेरी गुड. ओके अभी देखो सेकेंड और फोर्थ कार्बन पे 2 मिथाइल है. 2 मिथाइल है तो क्या नाम होता है? डाई मिथाइल. और सेकेंड और फोर्थ पे है सो 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन. तो पहले ये रूट वर्ड मतलब पेरेंट कार्बन पहले लिखना है. हेक्सेन 6 कार्बन है मतलब हेक्स. और अल्केन है सिंगल बॉन्ड तो हेक्सेन. और सेकेंड और फोर्थ पे 2 मिथाइल है. चलो कॉपी करो जल्दी से. ओके चलो नेक्स्ट वन. हाँ अभी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो. या करेक्ट. अभी नंबरिंग राइट से दोगे या लेफ्ट से? हाँ प्रियांशी नंबरिंग गलत है. नंबरिंग राइट से शुरू करनी है. या रोनित इज करेक्ट. दक्षित करेक्ट. तुबा करेक्ट. नंबरिंग राइट से करनी है. 1 2 3 4 5 6 7. श्रेयांश करेक्ट. हाँ प्रियांशी अभी ठीक है. हाँ ऋषिक करेक्ट है. हाँ 7 कार्बन मीन्स हेक्सेन. सो पेरेंट चेन इज हेक्सेन. और थर्ड कार्बन पे इथाइल है. अल्फाबेटिकली ई पहले आता है और वैसे भी थर्ड कार्बन पे इथाइल है. और फोर्थ कार्बन पे मिथाइल है. सो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन. 7 मीन्स हेप्टेन. ओके चलो अभी ये वाला देखो. हाँ करेक्ट मोहम्मद. 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है. हाँ करेक्ट दिस. 3 ethyl 2,3 dimethyl pentane. This is how you have to number from left. It is wrong. You have to sorry right. It is wrong. You have to number from left. चलो कॉपी हुआ. ओके नेक्स्ट वन करते हैं. अभी ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है. अभी ये या तो बॉन्ड लाइन में डायरेक्टली तुम नाम दे सकते हो या तो फिर इसको कन्वर्ट करो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में. ओके so either you can do directly in bond line or you convert into structural formula and then give the numbering and then name. ये दो लाइन मतलब इथाइल. एक लाइन मतलब मिथाइल. तो यहाँ पे मिथाइल है यहाँ पे मिथाइल है. और यहाँ पे 2 लाइन है मतलब ये इथाइल है. हाँ अभी देखो सर. हाँ हाँ करेक्ट है.
9 कार्बन की लंबी चेन है, देखो लंबी चेन इज ऑफ 9 कार्बन, इसको कन्वर्ट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहले 9 कार्बन की लंबी चेन लिखो, फिर यहाँ पे थर्ड कार्बन पे इथाइल है और थर्ड कार्बन पे मिथाइल है और 6 कार्बन पे मिथाइल है, एंड फिफ्थ पे देयर इज इथाइल, ओके। और नंबरिंग यहां से करोगे तो क्लोजेस्ट आएगी। ओके हाँ करेक्ट है, श्रेयांश, रोनित, हर्षित करेक्ट। ओके तो इसका नाम हो जाएगा, हाँ आर्य समझा, हाँ सर। और नेथन, यस सर। हाँ चलो नाम बताओ तुम दोनों। 5 इथाइल 5 ethyl, हाँ 6 3 comma 3 6 dimethyl nonane. हाँ 3,6 हाँ 3,6 डाइमिथाइल नोनेन, ठीक है। तो ये पहले 9 कार्बन है तो नोनेन, फिर 5 कार्बन पे इथाइल और 3 और 6 पे डाइमिथाइल, ओके नोनेन। चलो कॉपी करो, डायरेक्टली बॉन्ड लाइन में भी तुम नाम दे सकते हो, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पर नहीं समझा तो कन्वर्ट करो फिर नाम दो, ठीक है। जिसको डायरेक्टली समझ आ रहा है तो डायरेक्टली कर सकते हो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कभी कभी कन्वर्ट भी करना है तो हाइड्रोजन नहीं लगा के खाली कार्बन की चेन लिख लिख के करोगे तो भी चलेगा, हाइड्रोजन नहीं लगा के करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये तुम्हारी रेफरेंस के लिए तुम कर रहे हो, ठीक है। उनको सिर्फ आईयूपीसी नेम चाहिए, तुमने आईयूपीसी नेम सही लिखा है तो यू विल गेट मार्क्स। ओके चलो नेक्स्ट वाला देखो, हुआ सबका कंप्लीट। हाँ चलो अब ये कंडेंस फॉर्मूला में दिया है, अभी इसको थोड़ा एक्सपांड करके करना पड़ेगा। नहीं मोहम्मद, इनकरेक्ट है। चलो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की मिली सबको, देखो अगर मिथाइल ग्रुप ब्रैकेट में है तो वो ब्रांच है, मिथाइल या इथाइल ब्रैकेट में होता है इसका मतलब वो ब्रांच है। हाँ श्रेयांश तुबा करेक्ट, प्रियांशी करेक्ट, ओके। खाली CH2 ब्रैकेट में है, हाँ रोनित करेक्ट, CH2 ब्रैकेट में है तो वो लाइन में है, ओके। अभी देखो ये इसको एक्सपांड करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये CH3, ये CH पे 2 CH3 है तो ये CH है, और इस पे 2 CH3 है, फिर बीच में CH2 है, फिर वापस से ये CH है, H को एक्सपांड नहीं करोगे खाली ऐसा साथ में लिखोगे तो भी चलेगा, फिर ये C2H5 है, फिर ये CH है और इधर 2 CH3 है, ओके। अभी नंबरिंग राइट से करोगे या लेफ्ट से? हाँ सर लेकिन आपने CH के पहले CH3 दो बार ब्रैकेट में लिखा है, तो पहले C पे ही और दो मिथाइल ये वाला ब्रांच कौन सा बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है, सर फर्स्ट वाला एकदम फर्स्ट लेफ्ट वाला ना। हैंड साइड। देखो अभी ये CH के साथ 2 CH3 है तो ये CH है, ठीक है, और 2 CH3, एक इधर ऐसा, समझा।
इसको तूने ऊपर भी लिखा होता तो भी लाइन तो ऐसी जाती ना, समझ आया? यहाँ लिख या यहाँ लिख, चलेगा, कहीं पे भी लिख, ठीक है। फिर ये CH2, फिर ये CH, ये CH, ये रहा, दिख रहा है। फिर ये C2H5 ऊपर, फिर ये वापस से CH है, और इधर भी दो, एक CH3 है और ये बाद में CH3 है। ये ब्रैकेट वाला CH3 मैंने ऊपर लिखा है और ये CH3 बाजू में लिखा है, ठीक है। अभी नंबरिंग कहां से करेगा नेतन, राइट से के लेफ्ट से? तो दोनों साइड से, नहीं, दोनों साइड से नहीं। देखो अगर यहां से करोगे तो 2, 3 और 4 आएगा, है ना। तो इथाइल है ना, इथाइल, हाँ, इथाइल को कम नंबरिंग मिल रही है ना दोनों को। अब यहां से करोगे तो 2, 4 और 5 आएगा। तो 2, 3 और 4 छोटा हो जाएगा ना, 2, 5 और 2, 4 और 5 बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो राइट से नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ, फिर अभी इसका नाम बताओ, आर्य, नाम तुम बताओ आर्य। 3 ethyl, हाँ, 2,4 dimethyl hexane, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। hexane, हाँ, हेक्सेन, 3 Hexane. इथाइल, 2,4 4 dimethyl hexane. डाइमिथाइल 2,5, सॉरी, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, है ना, ठीक है। चलो अभी इसका बॉन्ड लाइन बनाना है, इसका बॉन्ड लाइन बनाना है। पहले 6 कार्बन जिगजैग लाइन में बनाओ, फिर सेकेंड और 5 पे एक एक डंडी बाहर, ऊपर या तो नीचे, और इथाइल के लिए 2 डंडी बनाने की, ठीक है ना। तो इसका बॉन्ड लाइन बनाओ। देखो इसका बॉन्ड लाइन ऐसे हो जाएगा, ये 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कैसे भी कर सकते हो जिगजैग, हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे भी कर सकते हो। फिर एक सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल और फिफ्थ कार्बन पे एक मिथाइल, और थर्ड कार्बन पे इथाइल, है ना, ऊपर या नीचे कैसे भी बना सकते हो। सबको समझा? ये ऐसे नीचे से शुरू किया तो भी चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या 6 कार्बन होना चाहिए जिगजैग लाइन बनाने की, बस। फिर मिथाइल की डंडी ऊपर या नीचे कहीं पे भी बना सकते हो, ऐसे इथाइल भी ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट वाला कर दे, 7th वन। हाँ चलो अभी इसको पहले एक्सपांड करना है, ये कंडेंस फॉर्मूला दिया है, इसको एक्सपांड करो, फिर नॉमेनक्लेचर लिखना है। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की हो जाएगी बताओ? हाँ, फरहान करेक्ट, श्रेयांश वेरी गुड, तुबा करेक्ट, हाँ फरहान, खाली श्रेयांश तुम्हारी नंबरिंग गलत है खाली। हाँ रोनित करेक्ट, हाँ प्रियांशी गुड। देखो इथाइल को जब एक्सपांड करोगे, ओके, तो CH2 CH3 CH2 CH3 ऐसे करो तो और इजी हो जाएगा। सो चारों तरफ इथाइल है, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है ना। मोहम्मद,
ओके अभी लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? हाँ 5 की है बराबर ना। अभी नंबरिंग राइट से करोगे कि लेफ्ट से? हाँ दक्षित करेक्ट, फरहान करेक्ट, मोहम्मद करेक्ट है। चलो नाम दो अभी मोहम्मद। हाँ सेम, इट विल बी सेम फ्रॉम बोथ द साइड। नंबरिंग लेफ्ट से करो या राइट से करो, ठीक है ना? या मोहम्मद करेक्ट, नंबरिंग नहीं दिए मोहम्मद, राइट ऑन नंबर्स। ऋषिक इनकरेक्ट है, टेट्रा मिथाइल कहां से आया? देखो यहाँ पे खाली ये जो ग्रुप है पूरा वो इथाइल है, ये भी इथाइल है बेटा, है ना? नहीं नंबरिंग गलत है मोहम्मद अभी भी। वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो ये पूरा ग्रुप है ना ऋषिक, दिस होल ग्रुप इज कॉल्ड इथाइल, दिस होल ग्रुप इज कॉल्ड इथाइल। ओके नाउ गिव द नंबरिंग अगेन, गिव द नेम अगेन। चलो नेथन नाम बताओ। 3,3 डाई इथाइल